Morning students. We have discussed about plant tissues and we have also gone through one of the 3D videos of animal tissues. We will discuss animal tissues in short again. So basically there are 4 types of animal tissues on the basis of their structure and on the basis of the function they perform in our body. These are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. As we know that tissues play a very important role in our lives, they bind the cell together, and these group of cells which are destined to perform a particular function are known as tissue. And epithelial tissue has generally a protective function. It covers the outermost layer of very essential organs, so it protects the organs from getting damaged, or it may also be known as protective tissue. Connective tissue, as the name is suggesting, it connects the things so that the transport becomes easier. Muscular tissue is related with the muscles, for example muscles of the heart, muscle of any organ. Nervous tissue is concerned with the nervous system, that is brain and spinal cord. These are in turn composed of a special kind of cell, special kind of tissue known as nervous tissue. And we will also study the structure and function of neuron, which is a specialized kind of nerve cell found in a nervous system. So one by one we will go through these types of tissues, and this is the flow chart you can draw in your notebook, which describes in short animal tissues and its subtypes. First comes is epithelial tissue. Epithelial tissue is also known as simplest tissue, and as I have told, covering or protective tissue that is separated from underlying tissues by fibrous basement membrane, hence always grows on other tissue. We can say that it needs a support or it needs a base to grow, because if there is any organ and it has epithelial tissue as the outer covering, then it should stand on some other basement membrane so that it can grow. We can say that हमारे पास एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन को कवर करता है अगर एपिथेलियल टिश्यू, तो उस एपिथेलियल टिश्यू को कुछ मेम्ब्रेन चाहिए ताकि वो उस ऑर्गन से सेपरेटेड रहे एंड इट कैन ग्रो इन, वो जो है अपनी ग्रोथ भी शो कर सके. ठीक है. इट कैन बी सिंपल मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल. इट कैन बी stratified means multiple layer of cells are present, and important characteristics is that in this type of tissue cells are tightly packed to form a continuous sheet. ठीक है. सेल्स का टाइटली पैक होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ प्लेइंग प्रोटेक्टिव फंक्शन. अगर लूजली पैक्ड सेल्स होंगे या स्पेसेस होंगे तो प्रोटेक्टिव वाला जो फंक्शन है वो ईजिली परफॉर्म नहीं हो पाएगा. सो देर इज़ नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस. लोकेशन स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ. द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज़ दैट इनर लेयर ऑफ द चीक, जो हमारी माउथ है, चीक के अंदर वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ पर हम कभी कभी देखते हैं वाइल ईटिंग और ड्यू टू सम और अदर रीज़न एक जो है पतली सी लेयर कभी कभी निकलती है. ठीक है. हमारे जॉ साइड्स से जो टच करती है, तो वो जो लेयर है एकदम थिन सी लेयर, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. Other examples include kidney tubules, alveoli, blood vessels, etc. So we can say that it covers the organs and cavities inside the body and separate different system from each other. ये अलग अलग तरह के सिस्टम को सेपरेट करती है ताकि हर सिस्टम जो है वो एक दूसरे से प्रोटेक्टेड रहे. इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द स्किन. हमारी स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको भी ये बनाता है इस तरह का टिश्यू. इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी एंड इन्फेक्शंस. जो फर्स्ट शील्ड है हमारी बॉडी की वो है एपिडर्मिस. अगर कोई चीज़, कोई पैथोजन, एनी इन्फेक्शन, एनी काइंड ऑफ डस्ट अगर उसको कोई रोकता है, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू. सो वी कैन ऑल्सो से दैट एपिथेलियल टिश्यू इज़ द फर्स्ट शील्ड ऑफ आवर बॉडी. Now classification of epithelium. First we are classifying it on the basis of number of layers. As I told you, simple means made of single layer. You can see here only one cell is attached with each other, and in stratified it is made up of many cell layers, means a pile is created of cells. Cell shape, we can say that the cells which are grouped together to form tissues may be of hexagonal, cuboidal, rhomboidal shape. So on the basis of cell shape they are divided into following categories. First, see the squamous
shaped cell. Squamous means hexagonal. Simple cuboidal में we can see cube type of cells are present. Simple squamous में we can see a sheet type of cells are present. सिंपल क्यूबॉइडल में क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं. कॉलमनर में किस तरह के सेल्स होते हैं? कॉलम टाइप स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. सी यू कैन सी अ ग्रुप ऑफ सेल्स in which column type of cells are present. It is forming simple columnar tissue. एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में क्या होता है? बहुत सारे ऐसे जो सेल्स हैं वो ग्रुप हो जाते हैं. सो we can see that on the basis of number of layers it may be simple and stratified, and on the basis of cell shape it may be squamous, it may be cuboidal, it may be columnar, right? Now this table is showing different epithelia with different structures and different function. First we will learn about squamous epithelium. Squamous epithelium में structure हम जैसे कि देख सकते हैं, cells are thin, flat, they don't have any particular shape, which fit like floor tiles to form delicate lining called pavement epithelium with nuclei in the center. जैसे कि tiles arrange होती है, अगर different shapes की tiles है उसको हम jigsaw fit करें एक दूसरे के अंदर तो वो कैसे fit होती है, वैसे ही टाइल्स का जैसा अरेंजमेंट होता है वैसे इस टिश्यू में अरेंजमेंट होता है. एंड वेयर दे आर लोकेटेड इन ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड ब्लड वेसल्स. इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द अंडरलाइन टिश्यू फ्रॉम इंजरी, जर्म्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन की जो सेल के अंदर बाहर एंट्री एंड एग्जिट है उसको कंट्रोल करता है. ठीक है. एंड मटेरियल्स बिटवीन सेल्स एंड ब्लड, और भी अगर कोई मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है या कोई और मटेरियल है, सेल वेस्ट को सेल के बाहर ले जाना है. सो दिस टाइप ऑफ टिश्यू बेसिकली stands between those type of organ which involve exchange of gases or exchange of materials. Next comes cuboidal epithelium. This type of epithelium is made up of cells which are cuboidal in shape. They have rounded nuclei in the center. They are found in kidney tubules and salivary ducts, salivary glands, एंड दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब कि एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है जहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं. ऑब्वियसली किडनी ट्यूब्यूल्स है. किडनी ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन है? इट एक्ट्स एज यूरिनरी पैसेज. तो वहाँ पर रिजिडिटी होना बहुत ज़रूरी है. अगर ट्यूब्यूल्स कोलैप्स हो जाएंगे तो किडनी का जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा. Right? And at times the epithelial tissue folds form a gland that secretes substance. Such epithelium is called glandular epithelium. You don't have to go in much detail, just remember कि ये वाले एपिथीलियम जब किसी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं तब इनको हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम. नेक्स्ट कम्स कॉलमनर एपिथीलियम. These are made up of pillar like और column like cells. एक दूसरे के साइड में प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दैम बट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द बेस. अभी तक हमने देखा न्यूक्लियस सेंटर में था, अब यहाँ पर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द बेस. ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है. इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सेल्स हैव सीलिया दैट मूव एंड पुश द म्यूकस टू क्लियर इट. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब जहाँ से हमारा रेस्पिरेशन वाला जो सिस्टम है वो अटैच होता है. और यहाँ पर सेल्स में क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. यानी कि सेल्स का शेप तो यही होता है बट हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया आर ऑल्सो प्रेजेंट विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ म्यूकस, ताकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो क्लियर रहे और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. सच एपिथीलियम विथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर और सीलिया इज नोन एज सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम. सो इफ समवन आस्क यू that ciliated columnar epithelium is a part of columnar epithelium, yes, it is one of the kind of columnar epithelium, and its basic function is in absorption, excretion and secretion. Next comes striated squamous epithelium. इसमें squamous flat cells arrange होते हैं बहुत सारी layers में, और इसका basic function है कि ये किसी भी organ को बहुत अच्छे से protect करता है, उसको wear and tear यानी कि उसको damage नहीं होने देता. Best example is skin, टंग, ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ द माउथ. सो इसका बेसिक फंक्शन वही है, प्रोटेक्शन, प्रिवेंट वियर एंड टीयर. सो वी कैन सी दैट बेसिक फंक्शन ऑफ एपिथेलियल, सारे जितने भी टाइप्स है उसमें वी कैन सी दैट बेसिक फंक्शन इज प्रोटेक्टिव फंक्शन. एक ऑर्गन को दूसरे से सेपरेट करना फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड मटीरियल टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर. सो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो
बहुत सारी चीज़ों को या एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्ट करे, बाइंडिंग, सपोर्टिंग, पैकिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एंड इनका जो स्ट्रक्चर होता है दे आर लूजली पैक्ड, ठीक है, ताकि ये आराम से मूवमेंट कर सके। और just keep one thing in mind, wherever you get written like this loosely packed cell, they will have intercellular spaces, और जो tightly packed है उनमें intercellular spaces नहीं होगा। So loosely packed intercellular spaces filled with jelly like substance called matrix, ठीक है। Basically we are studying these types of connective tissue: blood, ligament and tendons, areolar tissue, adipose tissue, cartilage and bone। इसमें मेन जो हमारे काम की चीज़ है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ब्लड, बोन एंड लिगामेंट एंड टेंडन्स। बट यू शुड नो अबाउट फंक्शन, एक जनरल आउटलाइन होनी चाहिए कि कौन से टिश्यू का क्या फंक्शन है। सो ब्लड में क्या होता है, इट इज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड मटेरियल होता है ब्लड में विच हैज़ प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। और हम सबको पता है ब्लड में होते हैं रेड ब्लड सेल्स RBC, वाइट ब्लड सेल WBC, प्लेटलेट्स, and it transport gases, food, hormones and waste to parts of the body। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्लड में ये जो सेल्स है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, दे हैव देयर ओन फंक्शंस जिसको इंडिविजुअली वी विल स्टडी इन डिटेल। देन कम्स बोन ऑफ कोर्स इट फॉर्म्स स्केलेटल, पूरा हमारे जो बॉडी है उसको सपोर्ट देने का काम है बोन्स का। एंड बोन्स ये भी करती है कि मसल्स को जोड़ के रखती है। अगर बोन्स नहीं हो तो मसल्स के पास भी कोई बेस मेम्ब्रेन या कोई बेस नहीं रहेगा टू गेट बाइंडेड। एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। वी ऑल नो दैट मसल्स आर फ्लेक्सिबल बट बोन्स आर नॉट फ्लेक्सिबल। एंड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट टाइप की बोन्स अटैच करती है। वी कैन नॉट से दैट बोन्स ऑफ आवर legs is similar to the rib cage or bones of our fingers are similar to the thumb of the leg। so different बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट टाइप की बोन्स जो है वो होल्ड करके रखती है। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स के बारे में वी कैन से लिगामेंट कनेक्ट्स बोन, इट इज़ इलास्टिक, हैज स्ट्रेंथ एंड वेरी लेस मैट्रिक्स। थोड़ा सा विस्कस होता है लिगामेंट, ये ब्लड के जैसे फ्लूइड नहीं होता है। टेंडन्स जो है जस्ट कीप इन माइंड, लिगामेंट्स जो है वो बोन्स को कनेक्ट करती है एंड टेंडन्स ऑलवेज कनेक्ट मसल्स, ठीक है। एंड दे आर लेस इलास्टिक, फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड मोर मैट्रिक्स। मीन्स अगर तुम्हें आए कि जनरल डिफरेंशिएशन बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन, सो लिगामेंट कनेक्ट बोन, टेंडन कनेक्ट मसल। लिगामेंट इज इलास्टिक एंड वेरी लेस मैट्रिक्स एंड टेंडन्स में दे आर लेस इलास्टिक विथ मोर मैट्रिक्स। नाउ कम्स कार्टिलेज। कार्टिलेज में क्या होता है, हार्ड इलास्टिक टिश्यू सॉफ्टर देन बोन, बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं। एक इजी सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारा ईयर है, ईयर के जो आउटर मोस्ट वाली जो मेम्ब्रेन है हमारी, जिसको टीचर जब कान पकड़ता है तो कान कहाँ से पकड़ता है, वो वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा इलास्टिक पार्ट है, वो बोन जितना टाइट या बोन जितना हार्ड नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है जहाँ से टीचर कान पकड़ता है, जिसको हम थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज कार्टिलेज, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली बोन। ये किसका बना हुआ होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रिन, ठीक है। विच इज़ वाई वी कैन, इस कॉन्ड्रिन की वजह से हम कार्टिलेज को बेंड कर सकते हैं, पर ये जो कॉन्ड्रिन है ये बोन में एब्सेंट होता है, इसलिए बोन को हम इस तरह से बेंड नहीं कर सकते, ठीक है। एरोलर टिश्यू, इट फिल्स स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन टिश्यू रिपेयर, फाउंड बिटवीन स्किन, मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो, दिस इज ईजी। एडिपोज टिश्यू इज इम्पॉर्टेंट, ये फैट को स्टोर करता है। जब कभी हमारी बॉडी में कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और हमने कुछ खाया नहीं है काफ़ी टाइम से, तो क्या होता है, ये जो एडिपोज टिश्यू में ये फैट्स है ये धीरे धीरे डिज़ोल्व होना शुरू कर देते हैं, ताकि डिज़ोल्व होके ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। सो फाउंड बिटवीन, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे जो है प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, इट एक्ट्स एज इंसुलेटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैट्स। हम कहते हैं जिसके बॉडी में फैट्स या एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है उसको क्या सर्दी कम लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इन दिस एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट कम्स मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है मेनली बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल, एंड दे आर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स। वी कैन सी फर्स्ट इज स्ट्रिएटेड
मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रिएशंस मतलब कि इस तरह की लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है जिसको हम स्ट्रिएशंस कहते हैं। इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। एंड अनस्ट्रिएटेड में क्या होता है, कोई इस तरह की लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होती, ये टेपरिंग या लॉन्ग एलोंगेटेड टाइप के फाइबर्स होते हैं, इनको हम स्मूथ मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। कार्डियक में क्या होता है, स्ट्रिएशंस होते हैं, न्यूक्लियस होता है, जंक्शन, ये जो ब्लैक लाइनिंग दिख रही है मोटी, दिस इज जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। अब कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में। अगर तुम स्ट्रक्चर से देखो हार्ट का क्या फंक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो ये जो मसल्स है इनका स्ट्रक्चर भी इसी तरह का है कि इनको मैं प्रेस करूँ तो ये इजीली प्रेस हो सकते हैं, वापस रिलीज करूँ तो दे कैन गेट रिलैक्स्ड ईजीली ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग, मसल्स हैव स्पेशल प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की ये जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करते हैं। नाउ ये जो 3 तरह के हमने शॉर्ट में पढ़े मसल टिश्यूज़, ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में ये दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट है स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप्ड और स्केलेटल वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मतलब हम अपनी इच्छा से इन मसल्स को मूव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई चीज़ होल्ड करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो आई एम डूइंग दिस फ्रॉम माई विल, मैं अपनी मर्ज़ी से इस चीज़ को, किसी चीज़ को उठा रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो दोज मसल्स विच आर अंडर आवर विल आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन किया, इसकी वर्किंग जस्ट रीड इट। अनस्ट्रिप्ड और नॉन स्ट्रिएटेड और इनवॉलंटरी में क्या है कि चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ, ये जो मसल्स है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि यूरेटर्स में ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स। अब मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि ब्लड वेसल्स चलो अपना काम करो तब ब्लड वेसल्स काम करेंगे, नो, दे विल वर्क ऑन देयर ओन, दे विल वर्क विदाउट माई विल, दे विल परफॉर्म देयर फंक्शन। सो ये जो मसल्स है ये इनवॉलंटरी मसल्स है। ठीक है, जैसे कि स्टमक लाइनिंग में अगर प्रेजेंट है तो स्टमक जो है वो अपना काम करेगा, और लंग्स है, लंग्स का अगर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग में काम है तो lungs will do their work on their own. So these type of muscle tissues will not need my will to perform their function. Cardiac muscle, this is one of the very beautiful type of muscles because they perform very unique function, यानी कि rhythmic contraction and relaxation throughout the life and pump blood. They are present exclusively present on the walls of heart, और कहीं भी ये present नहीं होते, that's why we are calling it as exclusive kind of muscles. नेक्स्ट इज़ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स के बने हुए होते हैं, और ये सिर्फ नर्वस टिश्यू में ही ये इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं, और ये जो है इनका हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है ताकि इंफॉर्मेशन या स्टिमुलाई एक नर्व सेल से दूसरे सेल तक पहुंचा सके, एंड इट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, एंड दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एंड मतलब कि कहने का ये मतलब है सिर्फ नर्वस सिस्टम में ही इस तरह के नर्व सेल्स देखने को मिलेंगे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। ये जो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं साइटोन, इसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है इसमें, और ये जो लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। साइटोन से मैसेज ले जाता है लास्ट ब्रांच की तरफ, और जो छोटा सा ब्रांच स्ट्रक्चर लास्ट में है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। ये जो है वो दूसरे साइटोन तक पहुंचाता है इंफॉर्मेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। वी विल स्टडी द फर्दर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास।